بہت سارے لوگوں کے ایسے اخلاق یا ایسی بدعات ہم کہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، پوری طرح پامشٹوں پر، عاملوں پر، فقیروں پر، مریدوں پر یا اس طرح کے کام کرنے والوں پر منحصر ہوتے ہیں، جس طرح کے غیروں میں ہے کہ وہ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر فال نکالتے ہیں کہ ڈیڑھ دیکھیے اس طرح کا فال نکلنا ہے، لوگوں میں شوہر بیوی ہونے والے جو ہیں ان کے درمیان جوڑ دیکھتے ہیں کہ کڑیاں ملتی ہے یا نہیں، دونوں کے درمیان ان کا پیچھے کا اثرات وغیرہ نکالا جاتا ہے، پیپر نکالا جاتا ہے کہ کنڈلی جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کو کنڈلی ملائی جاتے ہیں، یہ سب آج کل بزنس بن گیا ہے۔ یہ سب ایک مومن کی پہچان ان دونوں میں ہے، کیونکہ ایک معتدل اور راسخ العقیدہ مومن کے لیے ہے کہ وہ جادو کو تسلیم تو کرے، لیکن اس طرح کے جو پامشٹ عاملوں وغیرہ ہیں ان سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اعمال ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یومیہ صبح شام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے ہم ان ساری چیزوں پر محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پچھلی مرتبہ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے اثرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی معاملے میں نہیں دنیاوی معاملے میں ہوئے تھے۔ اب جادوگر کو کیا کرنا پڑتا ہے جادو کے لیے، یہ اہم باتیں ہیں کہ آج کل دیکھا دیکھی لوگ کیا کرتے ہیں، پسند کے طور پر، انٹرٹینمنٹ کے طور پر یا بہکاوے میں آ کر اور تو اور افسوس کے ساتھ سب سے آج بہترین دھندا اور بزنس بنا لیا ہے لوگوں نے اس کو۔ کیا ہے کہ جادو کے لیے سب سے بڑی چیز یا سیکھنا ہے تو پہلا کام جو ہے وہ شرک ہے، شرک کے ذریعے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو جادو کرو کی قسمیں ہیں جس کو انسان نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے پچھلے مہینے کی ایک جو کڑی تھی کہ جادو اور جنات، حقیقت اور حفاظت، اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جادو اور جنات، جادو کی حقیقت کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کرنے والوں کے لیے کیا سزائیں ہیں اور کن کن مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اور اسلامی ناحیے سے جادو کا کیا حکم ہے اور حفاظتی تدابیر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، تخلیق انسانیت کا مطلب سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، آیت نمبر 2 سورہ ملک۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، وہو العزیز الغفور، کہ وہ بابرکت اور باعزت بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا اور بخشنے والا بھی ہے۔ تو یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، یہاں ہمیں ٹیمپروری رکھا گیا ہے، آزمایا جائے گا، ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ تو اسی امتحان اور فتنے کی ایک کڑو یہ جادی اور جنات ہے۔ فتنہ اور امتحان کا ایک سلسلہ یا اس کی بھی ایک کڑی یا اس کی ایک قسم ہم مان لیں جادو اور جنات کو، جیسا کہ یہ بھی ہے کہ جو بھی جادو ہے یا جنات ہیں ان کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر، مشیت کے بغیر تو اثر نہیں ہوتا۔ مشیت تو ہے لیکن
दौर हाजिर के इस जदीद दौर में भी ये मौजू काफी अहम हो रहा है, दो वजूहात पर। एक, लाखों लोगों की बल्कि करोड़ों लोगों की आज तादाद साइंटिफिक के इस दौर में ऐसे अफराद की है जो जादू का सरे से इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि जादू का माफौल फितरत है। जदीद या जाहिरी नाहिए से हम इसको तस्लीम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिन्नात तो हमें दिखाई भी नहीं देते, जादू भी हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सरे से इस जादू का इनकार करते हैं। एक जमात तो ऐसे लोगों की है जो सरे से जादू का ही इनकार करते हुए कहते हैं कि हम देखी हुई चीज पर भरोसा रखते हैं, जादू वगैरह हम देख नहीं सकते। तो उनको बताना है कि जादू तो नहीं देख सकते, उसकी तासीर तो तुम देख सकते हैं। जिस पर जादू किया गया उसकी हालत क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कैफियत क्या है, वो तो महसूस कर सकते। अगर कोई चक्कर आ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, अचानक कोई बात हो रही है, तो उसको भी आजकल साइंस का नाम दिया जाता है कि साइंस में है एक इंसान में दो आवाजें आते हैं, दो चार मर्तबा खींच को इनको थप्पड़ की मारा की क्या तो पड़े, तो फिर उसके बाद उनको यकीन आता हाँ ये भी सही है। खुद के ऊपर या खुद के खानदान में से किसी को हो या करीबी रिश्तेदार में हो तो तब एहसास होता है, तब चलकर आमिलों के इधर उधर के चक्कर काटते हैं कि इस तरह हो गया। उससे पहले अक्सर लोगों को इसका इल्म या इसके बारे में वजाहत के साथ मालूम नहीं होता। तो एक तो ऐसे लोगों के अफराद है जो बिल्कुल कुल्ली तौर पर इसका इनकार करते हैं, ये भी गलत है। जादू तो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी तासीर दिखाई दे सकती है। जादूगर के क्या क्या चीजें हैं वो तो हम इशारों से मालूम कर ले सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के ऐसे अखलाक या ऐसी बिदात हम कहें कि वो क्या करते हैं, पूरी तरह पामिस्टों पर, आमिलों पर, फकीरों पर, मुरीदों पर या इस तरह के काम करने वालों पर मुनहसिर होते हैं। जिस तरह के गैरों में है कि वो लोग शादी बियाह के मौके पर फाल निकालते हैं कि डेढ़ देखिए, इस तरह का फाल निकलना है। लोगों में शौहर बीवी होने वाले जो हैं उनके दरमियान जोड़ देखते हैं कि कड़ियां मिलती है या नहीं, दोनों के दरमियान उनका पीछे का असरात वगैरह निकाला जाता है, पेपर निकाला जाता है कि कुंडली जिसको कहते हैं नौजुबिल्ला कि उनको कुंडली मिलाई जाती है। ये सब आजकल बिजनेस बन गया है, ये सब आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो ये देखा देखी हम मुसलमानों में भी बस ऐसे अफराद जो कि अकीदे के नाहिए से कमजोर हैं, जो रासिकुल ईमान नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी नेक काम करने से पहले इनके चक्कर लगाते हैं कि ये काम मेरे हक में सही है नहीं, मेरा हाथ देखकर बतलाओ, मेरी पेशानी पढ़कर बतलाओ। अरे पेशानी तकदीर तो लिख दी गई है, जो कुछ होना है वो अल्लाह की जानिब से है कि आप उससे मांगो, उससे दुआ करो। ये हाथ की लकीरें क्या हैं? ये हाथ की लकीरें इंसान के किस्मत को नहीं तय नहीं करते, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी लिखी गई है जिनके हाथ नहीं है। जो लोग जाकर इस तरह के काम करते हैं और हर काम में वो ये करते हैं कि कोई भी मसला हो, शादी हो, घर हो, कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, पहले वो पामिस्टों के पास, आमिलों के पास जाते हैं कि ये काम मेरे हक में अच्छा है नहीं, ये काम करना है तो कोसे दिन करना, कब करना, कोसे वक्त करना, कोसी जगह करना, ये सब। और वो लोग भी समझते हैं कि बकरा मिला है चलो हलाल कर लेंगे, फीस एक मरतबा 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 मिला है कि तो टोपी पहनाएंगे, टोपी दर टोपी। और उसके बाद उसमें कुछ असरात भी वो हो जाते हैं, कर देते हैं। अब इसकी वजह से वो उसी का गुलाम हो जाता है। आगे आ रहे हैं कि वो बातें कि जिसकी वजह से इस तरह की तासीरें होते हैं। तो इन दोनों मुनासबतों से एक तरफ इफरात है, एक तरफ तफरीत है। एक मोमिन की पहचान इन दोनों में है, एक मोमिन की पहचान इन दोनों में है, क्योंकि एक मोतदिल और रासिकुल अकीदा मोमिन के लिए है कि वो जादू को तस्लीम तो करे, लेकिन इस तरह के जो पामिस्ट आमिलों वगैरह है उनसे उसको कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अमाल है, दुआएं हैं, अज़कार हैं, यौमिया सुबह शाम की दुआएं हैं, उन दुआओं के जरिए हम इन सारी चीजों पर महफूज रखते हैं। और पिछली मर्तबा भी मैंने कहा था कि आप सल्लम पर जादू किया गया था और उसके असरात भी आप सल्लम को दीनी मामले में नहीं दुनियावी मामले में हुए थे। अब जादू की किस्में क्या हैं? इमाम राजी अलैहिर्रहमान ने 8 किस्मों तक बयान किए हैं, लेकिन इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने और इमाम कुर्तुबी और दूसरे मुफस्सिरीन ने इसको छांट कर 1-2 किस्मों में तकसीम किया है। पहली किस्म जाहिरी जादू की है, जिसके बारे में इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने कहा कि जादू के लफ्जी माने हकीकत से फेरना,
पर्दा डालना, आंखों में पट्टी डालना और जो हक है, हक को हटाकर बातिल को उरूज पर दिखाना, ये लफ्जी माने हैं। इस्तिलाही माने में जादू के माने हैं मुहक़्क़िक़ुम बिअरवाहिल, के वो रूहों की इस तरह की चीजें हैं और उसका ताल्लुक इंसानों की मिजाज से जोड़कर गैरों के या जिन्नात के जरिए से वो इस तरह का काम करते हैं। इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा ने अपनी मायानास तसनीफ ज़ादुल मआद सफ़ा 160 पर 1 में इसको नकल किया है। इस्तिलाही तारीफ के साथ जादू हक है जिसको सिहर कहा जाता है और कुरान मजीद में लफ्ज 60 से ज्यादा मर्तबा आया है। अंदाजा कीजिए कि एक मर्तबा ही अगर कुरान में एक पैगाम आया है तो उसकी कितनी अहमियत हो सकती है। ये पैगाम मुख्तलिफ नाहियों से 60 मर्तबा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। तो इस नाहिये से हमको मालूम कर लेना चाहिए कि जादू बरहक है, जादू किया जाता है, जादू होता है और उसके असरात भी देखे जाते हैं। जाहिरी तौर पर जादू अगर किया जाए तो उसका असर इंसान की शख्सियत पर होता है, किसी एक हिस्से पर भी हो सकता है, पूरी शख्सियत पर भी हो सकता है, उसको तकलीफ पहुंचाई जाती है या उसके रिलेटेड चीजों पर जादू किया जाता है, जैसा कि उसके दुकान है, मकान है या घर की चीजें हैं। अचानक देखा जाता है कि कई जगह पर घर में सेफ जहां पर है, कीली चाबी वगैरह है, वहां से चीजें चोरी होती है। इंसान तो दरकिनार, एक परिंदा भी वहां तक जा नहीं सकता, लेकिन चोरी की जाती है, चोरी होती है। तो इस तरह में भी वो लोग जादूगरों का हाथ होता है और ये भी वो खुद नहीं कर सकते, जिन्नात वगैरह की मदद के जरिए ही ये चीज हो सकती है। तो इस नाहिये से ये तो जादू का जाहिरी अमल है। अब उसके बाद एक दूसरा अमल भी है जादू का, जिसको हम जाहिरी तौर पर करतबबाजी कहते हैं। जिस तरह के जादूगर क्या करता है, लोगों के सामने भीड़ में कई सारे करतब करता है। ये आज से 30-40 साल पहले हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन आज उसके लिए किताबें हैं, उसके लिए आइडियाज हैं, उसके लिए करातिब है कि हाँ इस तरह के काम करेंगे तो ये होगा। कि अचानक देखते हैं कि दस्ती है, आग लग रही है, तो वो कुछ नहीं करता, उस दस्ती में क्या करता है, केमिकल डाल देता है, वो केमिकल से आग लगती है। जो फूंक मारता है, फूंक में केमिकल रहती है। इस तरह की कई सारी चीजें, परिंदों का उड़ना या कबूतरों का उड़ना, ये सब जादू की एक किस्म है जिसको शोबिदाबाजी उर्दू में कहा जाता है। ये तो हुई दूसरी चीज। इसी की एक कड़ी है हिप्नोटिज्म। ये आजकल डॉक्टरों में या साइकोलॉजिस्ट वगैरह इसको अपनाकर इलाज करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि इंसान और उसकी नींद के दरमियान का जो हिस्सा है उसमें वो उससे गुफ्तगू करवाते हैं। पहले तो क्या करते हैं, या तो इलाज के नाम पर कड़ी से कड़ी, बेहतरीन से बेहतरीन ऐसी दवाएं दी जाती है जिसमें कि नशा हो या नींद की तासीर हो वगैरह। उसके बाद वो पूरी तरीके से इंसान पर हावी होकर अल्फाज के जरिए, किरदार के जरिए, बातों के जरिए उसको कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ख्याली वहम, ख्याली पलो पकाकर। कुछ इसका भी इलाज है, इसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है। ये भी जादू की एक किस्म है कि जादू का एक हिस्सा है कि इसमें भी दवाओं के जरिए और इसी तरह अल्फाज के जरिए वो इंसान पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और इसका भी एक मुस्तकिल इल्म है, सालों इस पर मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। और कुरान की आयत है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। और इसके बारे में आगे की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 2, वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये सारे जो भी काम हैं वो अल्लाह के इज़्न से होते हैं, अल्लाह के पसंद से नहीं। शरीयत में ये बहुत रकीक मफहूम है, तकदीर की बात में आती है कि अल्लाह की रजामंदी क्या है, मशीयत क्या है। ये तो अल्लाह की मशीयत में है कि इंसान का इम्तिहान हो, इंसान को आजमा जाए, तो मशीयत की किस्म है। इल्ला बिइज़्निल्लाह कुरान इसीलिए कहता है कि सूरह बकरा आयत नंबर 101 और 102 में इसके लिए तफसील से ये वाकयात इस हवाले से मनकूल है कि क्या होता है और इसमें क्या असरात होते हैं। और गुज़िश्ता महीने के खुतबों में हमने सुना था इस हिसाब से कि जादू होता है और इसमें भी जादू का सीखने का भी एक मशगला है। आगे मैं बताऊंगा कि सीखना सिखाना उसके लिए हराम है, उसके लिए दलाइल के साथ। तो जादूगर को क्या करना पड़ता है जादू के लिए, ये अहम बातें हैं कि आजकल देखा देखी लोग क्या करते हैं, पसंद के तौर पर, एंटरटेनमेंट के तौर पर या बहकावे में आकर और तो और अफसोस के साथ सबसे आज बेहतरीन धंधा और बिजनेस बना लिया है लोगों ने इसको। क्या करते हैं कि अगर क्या भी काम काज नहीं तो क्या करते हैं, आराम से एक जगह बैठकर दुआ पढ़ना या फूकना शुरू कर देते हैं। ये खुद मैं आईनी शाहिद हूं इसका कि जैसा कि हमारे घर के बाजू एक साहब रहा करते थे,
कि मादी एतबार से वो बहुत तकलीफ के शिकार थे, ऑटो चलाते थे, दीन का उनको कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक छोटा सा दुकान लिया, दुकान पर पानी वगैरह के बाहिए से आरओ वाटर के साथ उन्होंने दुआ पढ़ना शुरू किया। अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गैर तो गैर मुसलमानों के भी सफे दिखाई देते हैं, बुरखा परदोश खवातीन वहां पर दिखाई देते हैं, 20-30 अफराद मामूली वहां पर जमघट्टा है। कैसे किया? नाजायज तरीके से, हराम कामों से, हराम तरीकों से ये चीज अपना रखे, धंधा बना लिया है लोगों ने, इसको बिजनेस बना लिया है। अब इसके लिए मैं और आप ये जान ले कि जादू का जो अमल है वो आसान नहीं है, एक। और दूसरी चीज कि जो कोई वो सीखना चाहता है तो सबसे बड़ी और पहली चीज जो उसे करनी पड़ती है वो है शिर्क, वो है शिर्क। शिर्क करेंगे तो ही वो होगा। तो इसी आयतों में है कि वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला बिइज़्निल्लाह फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कि इन आयतों में तफसील के साथ है कि जादू के लिए सबसे बड़ी चीज या सीखना है तो पहला काम जो है वो शिर्क है। शिर्क के जरिए उसकी शुरुआत होती है। तो जादू करो की किस्में हैं जिसको इंसान जादू और जिन्नात, ये हाफिज मुबश्शिर हुसैन लाहौरी इनकी किताब है, इसमें तफसील के साथ उन्होंने पॉइंट्स की शक्ल में जिक्र किया है। कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि जादूगर को पहली चीज जो उसे कराई जाती है कि वो पहले गैरुल्लाह की इबादत की तरफ जिन्नात उसे आमदा करते हैं कि जादू ऐसे इंसान नहीं कर सकता, बल्कि उसे जिन्नात से मदद लेनी ही है, जिन्नात से मदद लेकर ही वो कर सकता है, उसके बगैर तो उसके पास ये ताकत नहीं कि वो जादू करे। उसके लिए क्या करते हैं जिन्नात? उसको बोलते हैं कि तुम सूरज की पूजा करो, चांद की पूजा करो, खबर की पूजा करो, या इस तरह के काम करो, ये अमल आप इतने दिन तक करते रहो। तो जादूगर क्या करता है? सबसे शुरुआती अमल ही वो शिर्क की तरफ जाता है, शिर्क के काम करता है, गैरुल्लाह को साथ मिलाता है। यह है पहला अमल जो जिन्नात मदद करने के लिए उससे करवाते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है दलील के साथ खालफ बिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कि सूरह स्वाद आयत नंबर 80 पर 1, 80 पर 2, 80 पर 3, कि वो तो कसम खा कर आया अल्लाह के पास कि मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा, रास्ते से हटाऊंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, नेक बंदे के। ये चीज वादा करके आया है उसने कसम खाकर। तो वही होता है, पहली चीज वो शिर्क की तरफ ये करता है। दूसरी चीज क्या करता है? जादूगरों को कबीरा गुनाह की तरफ आमदा करता है, नाजायज चीजों को करवाता है। कबीरा गुनाह क्या है? पहले तो वो ये करवाता है कि नाउजुबिल्लाह माँ के साथ, बीवी के साथ, बहन के साथ या बेटी के साथ उसको जिना करवाता है ताकि फितरत से वो हट जाए। फितरत जो है, इंसान को जो पैदा किया गया है फितरत पर, फितरत के कुछ उसूल है, उन उसूलों से वो हटाता है, क्योंकि ममनुआ है, मुहर्रमात ममनुआ है। ये माँ हो या बेटी हो या बहन हो, उनके साथ नाउजुबिल्लाह जिना करने पर रखता है, या अपनी औलाद के साथ जिना करने पर मजबूर करता है। और एक जादूगर को इन सारी चीजों को करना पड़ता है नाउजुबिल्लाह, तभी वो चलकर उसकी मदद। और जितना जितना वो इस तरह के काम या कुफरिया चीजें करता है उतना उसके लिए जिन्नात मदद के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि शिर्क ज्यादा हो रहा है, और जिस कदर शिर्क हो रहा है और अल्लाह का गजब और नाराजगी बढ़ रही है, उसी कदर उसकी मदद की जाती है। ये तो हुई दूसरी किस्म। तीसरी किस्म इंसान को क्या करवाता है वो जिन्नात वगैरह ताउन के लिए, कि वो पहले नौजुबिल्लाह कहा जाता है कि कुरान पर बैठकर तुम नहाया करो। ये सब होते हैं जादू में कि कुरान पर बैठकर तुमको नहाना पड़ेगा, नौजुबिल्लाह पीरियड्स हैज के खून से तुमको कुरान की आयतें लिखना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, कितने के लोग तावीजों के बहाने या इस तरह की चीजों के हवाले वो तावीज़ों को पहनते रहते हैं। ये सब चीजें उसके पीछे कार फरमाए। सोचना चाहिए एक इंसान को कि जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो इस तरह की चीजें भी तो हो सकती है कि वो हैज या निफास के खून से लिखा जाता है। कुरान क्या है? तुम तसव्वुर कीजिए कि वो कुरान जो रहती दुनिया तक के सारे मसाइल का हल है, और ये कुरान ही एक जिंदा और इल्मी मौजिजा है जो किताब दावत है, हिदायत है, मौइज़त है, और इसको नाजायज बल्कि कभी चीज के लिए वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। उस पर बैठकर नहाते हैं, उसको गलत अल्फाज के जरिए खून, वो भी निफास के खून से इसको नकल करते हैं, फिर इसको पहनने की कोशिश करते हैं, बैतुल खला पहन कर जाते हैं चप्पलों की शक्ल में, और इस तरीके से वो जिन्नात उसकी मदद के लिए आते हैं। और उसके बाद एक और चीज भी कि जिन्नात से मदद के लिए जादूगरों से ये भी करवाते हैं कि उन्हें दिन तो छोड़ो महीनों नहीं नहाते, अपने बाल नहीं कटवाते। तसव्वुर कीजिए कि इस तरह के जो भी अमाल होते हैं, उनके बाल कैसे रहते हैं, उनके कपड़े कैसे रहते हैं, उनका जिस्म कैसा होता है कि ज्यादा नहीं, बाजू नहीं, 1 किलोमीटर से खुशबू शुरू हो जाती,
और ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, अपना मुरीद पीर और आला हजरत बना कर रखे कि हजरत बोले तो हो जाते पूरी चीजें। नऊजुबिल्लाह, सोचना चाहिए कि किन लोगों के पास हम जा रहे हैं और किन लोगों से इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो दिन तो छोड़िए, कभी महीने कभी साल भी नहीं नहाते, गंदगी में रहते हैं। और ऐसी गंदगी जो अजली गंदगी है, उन गंदगियों में रहते हैं, नहाते नहीं, पीते नहीं, कुछ भी नहीं, इबादत तो दूर की बात, मस्जिद वगैरह भी वो नहीं आ सकते, क्योंकि आएंगे तो उनके सारे अमल टूट जाएंगे। तो ये कुछ किस्में ही जो मैं बता रहा हूं कि जादूगरों को इन चीजों को करने के बाद ही वो जादू उसमें तासीर हो सकते हैं, या वो दूसरों को इस तरह के काम कर सकते हैं। इसी वजह से शरीयत में इससे सख्त रोका गया है कि जादू करना हो या कराना हो, सब कुछ हराम। अब ये जिन्नात वगैरह काहिनों को या जादूगरों को कुछ बातें बताते हैं, इसके लिए भी बुखारी की रिवायत है, 2 आयतें हैं। होता यह था कि इस्लाम आप सल्लम की बेइज्जत से कबल जिन्नात आसमानों को जाते थे और जो कुछ बातें हैं, खबरें हैं, फरिश्ते आसपास में बातचीत करते रहते, वो सुनकर आ जाते थे। लेकिन आप सल्लम के बेइज्जत के बाद इस चीज पर रोक लगा दी। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम फमन यस्तमिल आन यजिद लहु शिहाबर रसदा। कुरान कहता है, सूरह जिन की आयत है कि पहले वो लोग जाकर सुना करते थे बैठकर, लेकिन अब जैसे ही जाते उन पर सितारे टूट पड़ते, आग के शोले टूट पड़ते। इसी तरह दूसरी आयत सूरह सबा की है, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला लिमन अज़िन ला हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़ व हुवल अलिय्युल कबीर। सूरह सबा आयत नंबर 20 पर 1, इसमें है कि अल्लाह के पास किसी की सिफारिश कबूल नहीं होती मगर अल्लाह ने जिसको इजाजत दी हो। हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम, यहां तक कि जब कोई बड़ा फैसला नाजिल होता फरिश्तों के दिल दहल जाते, अल्लाह का क्या हुक्म हुआ है, क्या सजा हो सकती है, क्या इबरत हो सकती है। खालू माजा, वो लोग आपस में पूछते हैं, अर्श वाले फरिश्ते क्या हुआ है। खाल रब्बुकुम खालुल हक, तो अल्लाह ने हक बात कही है, अच्छी बात कही है। इसी रोशनी में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में 4070 पर 1 में तवील रिवायत नकल की है कि तिरत समा, के आसमान के फरिश्तों के दरमियान इस तरह की बहस होती है। तो उस वक्त क्या करते हैं ये शयातीन, जमीन से आसमान तक सब बस्ता होकर उसको सुनने की कोशिश करते हैं। अदरका अस मुस्तमिउ, कि इसके बाद हदीस में है कि जो सुनने वाला है उस पर क्या करते हैं, सितारा टूट पड़ता है। खबल आई कि खबल इसके कि वो इस बात को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ने से पहले ही सितारा टूट कर गिर जाता है। और कभी कभी अल्लाह ताला इम्तिहान के तौर पर क्या करता है, वो बात आगे बढ़ाने के बाद उन पर शोला गिरता है। और ये भी कुरान से, और साफात सफा फज़्ज़ाजिरात ज़जरा फत्तालियात ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ्ज़म मिन कुल्ली शैतानिन मारिद। सूरह साफात की इब्तिदाई आयतों में है कि शैतानों को मारने का एक अहम जरिया है सितारे। और आप सल्लम से पूछा गया, रिवायतों में आता है कि क्या तुम सितारों के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है। आप सल्लम सहाबा से पूछते हैं तो कहते हैं कि सितारों के बारे में उनके बहुत सारे अकीदे थे, और ये सितारे आप सल्लम के बेइज्जत से पहले बहुत कम टूटा करते थे, क्योंकि बेइज्जत के बाद ये आसमान पर रुकावट हुई थी, उससे पहले रुकावट नहीं हुई। तो बेइज्जत के बाद बहुत सारे सहाबा और बहुत सारे लोग ये देखा करते थे कि सितारे टूट रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि जिन्नात जैसे ही जाते थे इस्लाम आप सल्लम के बेइज्जत के बाद सितारे उन पर टूट कर गया करते थे। और उसमें से कभी वो खबर को उचकने या हासिल करने से पहले ही शोला आता उनको जला देता, कभी कुछ ना कुछ खबरें वो पा लेते हैं। और पाने के बाद क्या करते हैं, इन काहिनों को और जादूगरों को कहते हैं। अब जादूगर क्या कहता है, मुलम्माकारी करके काजी बन के अल्फाज आते हैं कि झूठ मूठ मिलाकर वो लोगों के सामने बयान करता है। कभी एक बात तस्दीक हो जाती है तो क्या करते हैं, लोग समझते हैं कि फलां आदमी बड़ा सच्चीज बोला था, वही बात हो रही है, वही काम हो रहा है, वही चीज हो रही है, हालांकि सौ झूठ बोला। इंसान वो नहीं देखते, ये उसकी बात हो गई तो उसी को पकड़ लेते हैं। फलां पीर हजरत, उनका ताल्लुक डायरेक्ट आसमान से है, डायरेक्ट आसमान से है। आसमान पहुंचे बाद मालूम होता कि उनके लिए क्या कुछ है। आसमान तो दूर के जमीन में ही हो जाते हैं उनके लिए। जादूगरों को आप नोट करके देखिए, उनको औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती, औलाद हुए तो भी वफात हो जाती है। और तो और उनका जिस्म हमेशा की बीमारियों का इलाज होता है। वो नमाजों की तरफ आ नहीं सकते, इबादतों की तरफ आ नहीं सकते, नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारी रुकावटें हैं, क्योंकि अगर वो नेकियां इबादतों में आगे बढ़ जाएंगे तो उनका किया धरा पूरा काम टूट जाएगा। खुद ये मुसन्निफ लिखते हैं, इंसान जादू और जिन्नात ने, मुबशिर हुसैन राहुरी, के कभी कभी इंसान को 50 दिन 70 दिन 80 दिन किनारा तन्हाई में रहना पड़ता, गलत काम करना पड़ता, बुराइयों में मुलविस रहना पड़ता, गंदगी में रहना पड़ता, यहां तक कि गंदगी क्यों ही खानी पड़ती है। तसव्वुर कीजिए, इंसानों के बाद जो चीज आती है वो जिन्नात इस तरह की मदद के लिए आते हैं, तो उनका क्या होगा।
क्या हशर होगा, क्या चीजें होगी। तो इसके लिए मेरी और आपकी कोशिश तो यह है कि जादू तो बरहक है, लेकिन हम में से कोई उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तस्लीम करना है। लेकिन आगे इख्तिताम में आएगी कि उसका तोड़ क्या है। इसीलिए शरीयत में जादूगरों के लिए बहुत कबीह अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अक़द अक़दतन फनफ़ख़ फ़ीहा फ़क़द अशरक, कि जिस किसी ने भी कोई रस्सी बांधी है, कोई ताबीज वगैरह लटकाई है, नसाई की रिवायत है 4057 रिवायत नंबर, कि जिस किसी ने भी ये अमल किया है फिर उसमें फूंक मारता है वो, तो गोया कि उसने शिर्क किया है, शिर्क का काम किया है। एक दूसरी हदीस है कि सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नह, कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। मुदमिनु खमरिन, के जो दाइमी शराब का आदी हो। दूसरा कातिउ रहमिन, सिला रहमी करने वाला, यानी रिश्ते तोड़ने वाला है, रिश्तों में उठल पटल या इस तरह के इख्तिलाफात डालने वाला। तीसरी चीज इबरत के नाहिए से देखा जाए, मुसद्दिकुम बिस्सहर, जो कि जादू की तस्दीक और जादूगरों के पास जाने वाला, हाथ में करते सो सही, अगर ये भी इंसान अगर बोले तो वो भी जहन्नम में जाने वाला है। जन्नत उसके लिए नहीं है कि अगर कोई जादूगर पास जा रहा है और उसकी तस्दीक कर रहा है कि तुम सही हो, तो समझो कि उसके लिए जन्नत में दाखिला नहीं है। और ये रिवायत अहमद की है, 15,580 पर 7 रिवायत नंबर, इब्ने हिब्बान के अल्फाज हैं। तसव्वुर कीजिए, जादू करना नहीं, जादू जो कर रहा है आप जाकर उस जादूगर की तस्दीक भी करेंगे, ला यदखुलून अल जन्नत, हदीस के अल्फाज आते हैं। इसी तरह मन अता अर्राफन फसअलहु लम तुक़बल लहु सलातुन 40 लैलतन, रवाहु मुस्लिम 2220 पर 3 रिवायत नंबर। ये तो हदीस और भी इबरत के अंदाज है कि जो कोई अर्राफ के पास, अर्राफ के माने काहिन है, तामश्त है, जादूगर है, हाथों की लकीरों को देखकर बतलाने वाला, पेशानी को देखकर बतलाने वाला, या आपको छूकर बतलाने वाला, और तो और इसमें मर्द तो मर्द, पर्दा नशीन खवातीन अपने सारे पर्दों को, अपने शरीयत के हुदूद को पामाल करते हुए उनके साथ न सिर्फ बैठते बल्कि अफसोस की बात उनके साथ गलत ताल्लुकात कायम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो जादू के जरिए क्या कुछ हावी हो सकता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए न सिर्फ ये कि हम भी दूर रहे, आसपास के माहौल में भी इसके बारे में वजाहत करे कि क्या कुछ अमल होता है और कितनी गंदगी उनके पास पाई जाती है। इसीलिए कहा कि जो कोई अर्राफ के पास जाए, बस जाने की बात हो रही है यहाँ इस हदीस में मुस्लिम के, या कोई तस्दीक भी नहीं, बस जो कोई इस तरह काहिनों के पास जाता है, जादूगरों के पास जाता है, पावेशों के पास जाता है, तो अल्लाह ताला 40 रातों तक उसकी नमाज तक कबूल नहीं करता, उसकी इबादत तक कबूल नहीं करता। तसव्वुर कीजिए कितना कबीह और कितना कबीरा गुनाह है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि इज्तनिबु अस्सबअल मौबिकात, क़ालू वमा हुवा या रसूल अल्लाह, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 7 कबीरा गुनाहों से बचो, कि ये 7 कबीरा गुनाह इस्लाम में सबसे बड़े गुनाह हैं, सबसे बड़े कबीरा गुनाह है, जो 7 नंबर शुरुआत में आते हैं बुखारी की रिवायत में। इज्तनिबु अस्सबअल मौबिकात वमा हिया या रसूल अल्लाह, क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह, पहली चीज जो है वो है अल्लाह के साथ शिर्क है। दूसरी चीज अस्सिहर, दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है जादू। जादू का सीखना भी हराम, सिखाना भी हराम, करना भी हराम, करवाना भी हराम। क्यों? क्योंकि कुरान से मैं दलील दे रहा हूं, जो कोई वाकयात मैंने आपके सामने कहे कि जादूगर कैसे जादू पर हावी हो सकता है, जिन्नात की मदद कैसे आ सकती है। कुरान कहता है सूरह शूरा आयत नंबर 220 पर 1 से 220 पर 3, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ून अस्समा व अक्सरुहुमुल काज़िबून वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, कि सूरह शूरा की आखिरी आयतें 220 पर 1, 20 पर 2, 20 पर 3, उसमें अल्लाह ताला कहता है हल उनब्बिउकुम, क्या मैं तुमको खबर ना दूं, अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, के शयातीन किन पर उतरते, किन के पास आते, किन की मदद करते, तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, वो मदद करते हर उस शख्स की जो गुनहगार है, अफ़्फ़ाक ज्यादा गुनहगार है, बदकिरदार है, असीम और गुनाहों में लथपथ जिंदगी गुजार रहा है, उसके ऊपर वो आकर उतरते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, जो जितना ज्यादा गुनाह करता है जिन्नात शयातीन वगैरह उसकी मदद के लिए उतने लपकते। युल्क़ून अस्समा व अक्सरुहुमुल काज़िबून, वो क्या करते हैं, सुनी सुनी बातों को, इधर उधर की बातों को लाकर उसके सामने बयान करते हैं। और अक्सरुहुमुल काज़िबून, और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। लेकिन
लोग क्या करते हैं, उनके बहकावे में आकर इस तरह के काम करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपके सामने बयान की, कुरान की दलील है। सूरह शोरा 220 पर 1 था, 220 पर 3, 20 पर 4 आखिरी आयत है, इख्तितामी सूरत जहां सूरह शोरा की है, वहां पर तफसील से ये वाकयात मनकूल है। इब्न कसीर रहमान ने तफसील से इन वाकयात की निशानदही की है। अगर कोई पढ़ना या मुताला करना चाहता है तो उस किताब को मुताला करे, या इब्न कसीर रहमतुल्लाह की तफसीर को मुताला करे इन आयतों की रोशनी में, कि वो क्या कुछ करते या कितने गुनाह उनसे होते, कितनी बदकारियां, या अल्लाह ताला के गज़ब गज़ब के कितने वो जिम्मेदार अपने आप को ठहरा लेते। तो इसी वजह से जादू का जो भी अमल है वो शरीयत ने उसको हराम करार दिया है, नाजायज है, हराम है, करना भी हराम, करवाना भी हराम, सब कुछ हराम है। और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादूगर की सजा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की रिवायत है 1460 रिवायत नंबर के ज़रबतुम बिस्सैफ, कि अगर तुमको मालूम हो जाए कि वो जादूगर है तो उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो इस्लामी हुकूमत नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जहां इस तरह के मसाइल हैं, वहां तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मैंने कहा था कि उनके दौर में इस तरह की कार्रवाई हुई और जादूगरों को कत्ल किया गया था, कि उनके जादू की पादाश में उनको कत्ल किया गया था। क्योंकि यह हदीस है, जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि ज़रबतुम बिस्सैफ, कि उन्हें उनकी तलवार से उनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। तिरमिज़ी की रिवायत है 1460। अब ये भी एक डाउट या ये भी एक इश्काल पैदा होता है कि अगर जादू हो गया है, समझो कि किसी पर जादू हो गया है, अब जादू के तोड़ के लिए क्या हम जादूगर के पास जा सकते हैं? जादू तो हो गया, हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमें उसके तोड़ के लिए जादूगर के पास जाना है, तो भला गंदगी को कैसे दूर कर सकती है? जैसा कि हदीस में है कि अगर कोई इस्तिंजा की सफाई हासिल करना चाहता है, उसके लिए अगर वो गंदगी से ही हासिल करना चाहे तो कहां से हो सकती है? और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है 3860 पर 7 रिवायत नंबर, हिया मिन अमल शैतान, कि अगर जादू के तोड़ के लिए भी कोई जादूगर के पास जाता है तो वो शैतान का अमल है, शैतान का काम उसने किया है। और शैतान का काम क्या करता है? लोगों को राह से भटका कर जुल्मत की तारीकियों में, जलालत में, शिर्क में, बिदआत में, इसमें वो मुब्तला करता है। तो हिया मिन अमल शैतान, ये अबू दाऊद की रिवायत है 3860 पर 8 रिवायत नंबर। तो इस राहिए से मालूम होता है कि शरीयत में जादू करना हो, कराना हो, जादूगर के पास जाना भी हो तो कितना कबीह गुनाह है। सिर्फ जाएंगे तो ही 40 दिनों की इबादतें हमारी कबूल नहीं होती। और कोई अगर जाकर गिरा वगैरह बांध लिया, तावीज़ जो भी उनका ये है, रस्सी वगैरह बांध ले, तो गोया कि उसने शिर्क किया है, और ये शिर्क अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बारहा हमने सुना है कि अल्लाह ताला हर चीज को माफ कर सकता है, लेकिन जब बात उसके साथ शिर्क की है तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करता है। तो इसके लिए मैं और आप जादूगर और जिन्नात या इस तरह की चीजों से हद दर्जा अपने आप को दूर रखना है, हद दर्जा अपने आप को दूर रखना है। और साथ में अज़कार की पाबंदी है, इबादतों की पाबंदी है, कुरान मजीद की तिलावत है, तफसील से है, सूरह फलक, सूरह नास, इन दोनों का शान नुज़ूल ही हुआ है जादू की तोड़ के लिए, कि आप सल्लम पर जादू किया गया था, उसकी तोड़ के लिए हुआ है। इसीलिए सुबह शाम के अज़कार में इसको पढ़ना है। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत है, उसमें औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन ऐनिल लाम्मा। ये बेशुमार इस तरह के अज़कार आते हैं, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, मुस्तनद अहादीस के साथ एक एक लाइन, दो दो लाइन के इस तरह के अज़कार आते हैं। उन अज़कार की पाबंदी करना है। जादू हक है और इस तरह जिन्नात का अमल होता है। एक सहाबी की रिवायत भी है, सफर से वापसी के दौरान उन्होंने देखा, अहमद की रिवायत है कि एक जगह पर एक शख्स को जंजीरों में बांधा गया है, और वो लोग कहते हैं कि तुम पर तो, तुम्हारे रसूल पर तो हक नाजिल हुआ है, इस तरह की मुर्गी का बीमारी या इस तरह की चीजें बहकी बहकी बातें करता है, इसका इलाज हो जाए। तो सहाबी रसूल 3 दिन उसके पास रहकर सुबह शाम सूरह फातिहा की तिलावत करके थूकते थे, दम करते थे उसके ऊपर। उसका असर यह हुआ कि गोया के उसको छुटकारा मिला। वो शख्स कहता है कि मुझे अब ऐसा सुकून मिला है, गोया कि मुझे सख्त रस्सियों में जकड़ दिया गया था, अब रस्सियां पूरी खुल गई है। तो बताना यह मकसूद है कि शरीयत के नाहिये में सूरह फलक, सूरह नास, इनकी पाबंदी करनी चाहिए। आयतल कुर्सी, इसका एहतमाम करना है। औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये मुस्लिम की रिवायत है, इतनी हदीस है। औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। इस रिवायत के बारे में आता है कि अगर किसी जगह पर मालूम हो जाए कि जादू का असर है या जिन्नात का असर है, तो वहां पर इस दुआ को पढ़कर फूंकना चाहिए। और अगर पूरी तरह असरअंदाज है, सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सूरह बकरा की आखिरी आयतें जो है, उन आयतों की तिलावत करना है। सूरह
फलक है, सूरह नास है, इन आयतों की तिलावत करनी है। जादू बरहक है, हो सकता है, और इसके लिए शरीयत ने तदाबीर दिए हैं कि जादू का तोड़ कैसा हो। तो इन तोड़ के लिए अब कोई लोग ये भी शिकवा करते हैं, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, कि कुछ लोगों को तो होता नहीं ना जादू। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनकी मदद की हो या अज़कार ने उनको बचा लिया हो। जैसा कि शाम का जहर है, जहर का हर किसी को असरअंदाज होना जरूरी नहीं। कभी किसी को सेकंडों में वफात हो सकती है, कभी किसी के जिस्म पर शाम का जहर जो है वो असर नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं कि जहर में तासीर नहीं है, जादू में तासीर है। अगर सामने वाला बंदा शरीयत के जो अहकाम है उन अहकाम की पैरवी कर रहा है, इबादतें कर रहा है, और जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है बुखारी की कि आयतल कुर्सी का एहतिमाम वो सुबह शाम पढ़ रहा है और नमाजों की पाबंदी कर रहा है, जिक्र व अस्कार की पाबंदी कर रहा है, और जो भाई दुआएं कही थी कि बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व ऐनिल लाम्मा। ये सब दुआएं सुबह शाम के अस्कार की, इन दुआओं का एहतमाम कर रहा है तो समझो कि जादू का असर उस पर हो नहीं सकता, इल्ला है कि अल्लाह की मशीयत में हो। लेकिन जाहिरी तदाबीर मुझे और आपको इख्तियार करनी है, और लोगों में और आसपास के मुआशरे में या इस तरह के जो अफराद होते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, उसमें बेदारी लाना है कि अमल इतना कभी है, इससे बचना है, और उसके बाद जाना भी नहीं चाहिए, तस्दीक तो दूर की बात, जाना भी नहीं चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को शरीयत के जो मसाइल हैं उनको जानने की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह जादू या जादूगरों के सिलसिले में आजकल जो इसको लोगों ने बिजनेस बनाया है या गुमराहियों का एक जरिया बन गया है, उन जरायों को मैं और आप अपने नाहिए से खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयाति वल कुरआनि वज़ ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम।